When the Lord is offering us the whole loaf, जब परमेश्वर हमको पूरी रोटी देना चाहते हैं, we look to live on the little crumbs. हम टुकड़ों पर जीना चाहते हैं। This is the sad story of most of the Christians today. ये दुखी कहानी है ज्यादातर मसीह लोगों की। We have no clue how great our blessings are. हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी आशीषें कितनी महान We हैं। often settle for the small things, आमतौर से हम थोड़े से ही खुश हो जाते हैं leaving out the greater things. और बड़ी बातों का फिर आनंद उठा नहीं पाते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning the Lord wants to speak to us from the story of 10 lepers. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर 10 कोढ़ियों के जीवन से हमको सीख सिखाना चाहते हैं। Out of these 10 lepers, इन 10 कोढ़ियों में से 9 missed out on the greater blessings, 9 कोढ़ियों ने वो महान आशीषों को गवा दिया but settled for the smaller things. और थोड़े बहुत से ही खुश हो गए। This morning I want us to note down 3 things, very important things इस there. सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि 3 बातों की नोंद आप ले लीजिएगा जो But, महत्वपूर्ण बातें but हैं। before we go there, लेकिन वहां पे जाने से पहले I want to give a brief background to this place. मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा। Jesus is en route to Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे He's हैं, coming from Samaria. समारिया से आ रहे हैं। Between Samaria and Jerusalem, he had to pass through a leper's camp. समारिया से यरूशलेम तक जाने के लिए बीच में जो है ये कोढ़ियों का तंबू आता है, छावनी आती है। You know, when he passed through the leper's camp, और जब वहां से वो गुजर रहे थे यीशु मसीह, these lepers realized that it is Jesus who's passing तो by. ये कोढ़ियों को पता चल गया कि यीशु मसीह गुजर रहे हैं। Number one thing in verse 13 of chapter 17 of Luke we can see. लूका के 17वें अध्याय के 13वें वाक्य में पहली बात हम देखते हैं। Number one thing that we see is that they began to lift up their voices and they began to cry out. हम देखते हैं कि वो अपनी आवाजों को उठाने लगे और यीशु को पुकारने लगे। It says here in the NKJV version, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। My brothers and my sisters, number one thing that we need to learn from here is, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात जो हमने सीखना है यहाँ से वो ये है we need to learn to seize our moment. कि जरूरी है कि हमारे उस पल का हमको फायदा उठा लेना, Seize our moment with the Lord. परमेश्वर के साथ में उस पल का फायदा उठा They लेना। understood that Jesus is passing by. और देखिए उनको समझ आया कि यीशु मसीह गुजर रहे He is हैं। not a small one. यीशु मसीह छोटे नहीं He है, is not an ordinary one. सामान्य नहीं है, He is not an insignificant ये one. सामान्य नहीं है। He is somebody who healed many lepers. और यीशु मसीह ने बहुत सारे कोढ़ियों को चंगा किया है, He has raised dead. उन्होंने मृतकों को जिलाया है, The lame has walked and the deaf has heard. लंगड़े चलने लगे हैं और जो बहरे हैं वो सुनने लगे हैं। They thought it is their moment. उनको ये लगा कि ये हमारा पल They है, thought they saw that Jesus is passing by to give them their moment of healing. और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह गुजर रहे हैं ताकि उनको उनके चंगाई का पल मिल जाए। What did they do? उन्होंने क्या They किया? cried out वे and रोने लगे, said, Jesus, पुकारने लगे Master, have mercy on us. और कहने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर तू दया कर। Praise God. परमेश्वर के नाम My की स्तुति brothers हो। and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, the Jesus who passed by, और यीशु मसीह गुजरे, I know the same Jesus even passes through you. और वही यीशु मसीह जो है हमारे से भी गुजरते हैं। Do you seize your moment of favor with him? क्या आप उस पल का फायदा उठाते हैं? Do you seize the great opportunity क्या आप उस मौके का फायदा to उठाते हैं receive what you want from him? कि आप उनसे पाले जो आपको चाहिए? Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। These men were desperate men. और देखिए ये जो पुरुष थे वो बहुत ही व्याकुल थे, Desperate people make desperate prayers. और देखिए व्याकुल लोग जो है व्याकुल प्रार्थना को करते If हैं। you are a desperate person, अगर आप व्याकुल जन हैं desperate prayers you too need to learn to make. तो व्याकुलता की प्रार्थना जो है आपने भी सीखना है करने के लिए। They forgot the etiquettes. वे भूल गए उनके तौर तरीकों को, They let go of the decorum. और वे भूल गए कि किस रीति से उनको बर्ताव करना है They didn't- कोढ़ी होने के नाते। They didn't care who was watching them. उनको कोई परवाह नहीं थी कि कौन उनको देख रहा They है। were only interested in getting the attention of Jesus. वे केवल ये चाहते थे कि यीशु का ध्यान उन पर आ जाए, They managed to do that. और उन्होंने ये बखूबी किया।
My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it is quite possible that you too have a problem like them. और ये हो सकता है कि आपके जीवन में भी उनकी तरह समस्या हो। You too need to become desperate to receive a solution from the Lord. और देखिए, परमेश्वर से अगर आपको हल चाहिए तो आपने भी व्याकुल हो जाना है। Number 2, दूसरी बात, when they cried out like that, जब वो ऐसे पुकारने लगे, Jesus answered them back in verse 14. और 14वें वाक्य में यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। We can see here he says, when he saw them, he said to them, he said, go show yourself to the priest. और वो कहने लगे, यीशु मसीह कहने लगे उनको कि जाओ और अपने आप को याचकों को दिखाओ। Further down it says, and so it was that they went and they were cleansed. और लिखा हुआ है आगे, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। You know what? They had to walk their faith. और देखिए, उनके विश्वास को कार्य में उनको लाना था। Jesus did not give them instant healing. और वहां पे तुरंत ही यीशु मसीह ने उनको चंगाई नहीं दी, Jesus did not make them whole immediately. और तुरंत ही उनको चंगाई प्राप्त नहीं हुई। Jesus said the latter process in the beginning itself. और यीशु मसीह ने बाद की क्रिया को अभी से ही की। You know, whenever a leper gets cleansed, जब कभी भी एक कोढ़ी शुद्ध हो जाता है, he had to go and see the priest. उसको जाकर याचक को अपने आप को दिखाना The होता है, priest had to certify him and say that he is clean from the leprosy. और याचक को ये बोलना पड़ता है कि ये कोढ़ी जो है शुद्ध है, कोढ़ अभी इसको नहीं है। But Jesus, what did he do? लेकिन यीशु ने क्या किया? Instead of healing them, he said, go and see the priest. वहां पे तुरंत चंगाई करने के बजाय यीशु ने उनसे कहा कि जाकर अपने आप को याचक को दिखाओ। What was he doing? वो क्या कर रहे थे? He यीशु was testing their faith. वो उनके विश्वास को परख रहे थे। I'm sure the moment Jesus said, go and see the priest, और मैं ये निश्चय समझता हूँ कि जब यीशु ने कहा कि जाकर अपने आप को याचक को they दिखाओ, must have received strength in their weak bodies. और अपने दुर्बल शरीरों में उन्होंने बल को पाया होगा। As they took a step towards the temple to see the priest, और जैसे उन्होंने कदमों को उठाया मंदिर जाने के लिए और याचकों को अपने आप को दिखाने के I'm लिए, sure they must have felt something in the bone marrows. और उन्होंने अपने हड्डी के गूदे में कुछ महसूस तो किया As होगा। they were getting closer to the city, और जैसे वो शहर के पास जा रहे थे, I'm sure their bones were getting stronger. और उनकी हड्डियां जो है और बलशील हो रही थी। As they were entering the city, their skin, their flesh and their skin and even the wounds began to heal. और जैसे वो शहर में प्रवेश कर रहे थे तो उनका शरीर, चमड़ा और सब कुछ जो है स्वस्थ होने लगा। At every step they were moving closer to the healing. और देखिए, हर एक कदम को जो वो ले रहे थे अपने चंगाई के नजदीक वो आ रहे थे। They were coming closer to the miracle. वो अपने उस अद्भुत कार्य के नजदीक आ रहे My थे। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, Jesus expects you also at times to go through this process. और यीशु मसीह जो है अपेक्षा रखते हैं आप भी कभी कभार ऐसी क्रिया से गुजरो। Your miracle may not come immediately. आपका आश्चर्यजनक काम जो है तुरंत शायद नहीं हो, Your miracle may not come instantly. हो सकता है तुरंत न हो, But you may have to walk. लेकिन जरूरी पड़ जाता है आपको कि आप विश्वास की चाल को When चलें। you're walking, you're believing in. जब आप विश्वास की चाल को चल रहे हैं, आप उन पर विश्वास When करते you're हैं, walking, you're placing your faith in Him. और जब आप चल रहे हैं तब आप अपना विश्वास उन पर रखते When हैं। you're walking, you're remembering His word and looking to Him. जब आप चल रहे होते हैं तो आप उनके वचन को याद रखते हुए उनकी ओर देखते हैं, As you do that, और जैसे आप ऐसा करते हैं that miracle becomes closer to you and become part of you and manifest over you. और वो आश्चर्यजनक काम जो है वो आपके नजदीक आ जाता है, वो आपका भाग बन जाता है और वो आप में दिखाई भी पड़ने लग जाता है। It's rather unfortunate. It's good thing that they all got healed, अच्छी बात है कि सारे के सारे 10 को चंगाई मिल गई, but rather unfortunate. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है Only one understood what he had and an encounter with. और सिर्फ एक ही समझा, एक ही कोड़ी समझ गया कि भेंट यीशु के साथ होना इसका क्या मतलब He है, understood that he had an encounter with life, not just the healing. और वो समझ गया कि उसकी मुठभेड़ जो है जीवन के साथ हुई है, सिर्फ चंगाई के साथ नहीं। But the rest of them लेकिन बाकी के 9 were busy in celebrating their healing. वो अपने चंगाई का आनंद उठाने में ही व्यस्त हो गए। The rest of them were busy seeing the relatives. वो अपने सगे संबंधियों को देखने में व्यस्त हो गए, The rest of them were busy in arranging a party and enjoying with them. और बाकी के लोग जो है पार्टी को अरेंज करने में और आनंद
मनाने में लग गए थे, But only one understood the importance of seeking Jesus. लेकिन केवल एक को ये महत्व समझा कि यीशु को खोजना इसका क्या लाभ होता है। We can see this in further verses. और आगे हम वाक्य में देखते हैं, And one of them, when they saw that he was healed, returned with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह समरी था। In the lepers' camp, both the Samaritans and Jews were dwelling because they were thought to be cursed set of people. और कोड़ियों के उस छावनी में समरी के लोग और यहूदी के लोग जो है, इजराइल के लोग, दोनों ही वहां पे रहते थे। All the 10 had the problem and all the 10 received the healing. क्योंकि वो शापित जाने जाते थे और 10 में ये समस्या थी और 10 को चंगाई प्राप्त हुई। And the only one realized the greater blessing that he had encountered. और सिर्फ एक ही को मालूमात हुई कि उसको महान आशीष मिली है। He said he glorified God, लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को महिमा देने लगा, fell down on his face और at his feet. मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर गया, He gave thanks to him. धन्यवाद करने लगा। These 3 things he did it to the Lord. ये 3 बातें उसने की And the Lord Jesus looked at him और यीशु मसीह ने उसको देखा and he said, और कहा, were there not 10 cleansed? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? But where are the 9? बाकी के 9 लोग कहाँ हैं? Verse further down, verse 18 says, were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? 19 very very importantly says, 19वां वाक्य महत्वपूर्ण and वाक्य, he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this one leper who gave glory to God, ये एक कोढ़ी ने जिसने परमेश्वर को महिमा दी, who fell at his feet, जो यीशु के पांव पर गिर गया, who was prostrate before him, जो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर गया, giving thanks to him, उनको धन्यवाद देता रहा। he not only received healing to the body, केवल शारीरिक चंगाई उसको नहीं मिली, he received the healing of mind and the spirit. और उसको आत्मिक चंगाई मिली और मानसिक चंगाई भी मिली, He received the joy that is unspeakable, और उसको आनंद मिला जिसका वर्णन वो नहीं कर सकता the था। peace that surpasses all understanding. वो शांति जो हर एक समझ के परे है। He had encountered the living God of Israel. इजराइल के जीवित परमेश्वर के साथ उसका मुठभेड़ He हुआ had था, an encounter with life itself. और जीवन के साथ उसका मुठभेड़ हुआ He had healing here, और यहाँ पे उसको चंगाई मिली, healing hereafter. और इसके बाद भी चंगाई उसका भाग He had बना। life here जीवन उसका यहाँ पे था and life और hereafter. जीवन इसके बाद भी उसका भाग बना His रहा। story tells us very clearly. उसकी कहानी हमको स्पष्ट रूप से बताती है। Don't become too glad, too happy with the small blessings. और देखिए, छोटी छोटी आशीषों को लेकर ज्यादा खुश मत होइएगा। Remember, there is a greater thing that is waiting for you. और आप ये याद रखिएगा कि आपके लिए महान बातें रुकी हुई है। Push towards Jesus. यीशु की ओर अपने आप को Get ढकेलिए, intimate with Him. यीशु के साथ आप नजदीक Praise Him, worship Him. का रिश्ता रखिए, उनकी स्तुति करिए, उनकी आराधना, Live in His presence. उनकी उपस्थिति में निरंतर बनी रहिए। As you live in His और presence, जैसे उनकी उपस्थिति में हम निरंतर बने Healing will रहते come. हैं, चंगाई आएगी, deliverance will come. छुटकारा आएगा, Every spirit of poverty will be removed from हर you. एक दारिद्र्य की आत्मा जो है वो निकल जाएगी, Every problem will be set right. हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। Most importantly, महत्वपूर्ण बात, that you will tap into the greater blessings that the Lord has for you. और महान आशीषों में आप अपने आप को लगा सकते हैं जो आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा I हुआ है। believe these 10 lepers taught us something very precious this morning. मेरा ये विश्वास है कि इन 10 कोढ़ियों ने कुछ मूल्यवान हमको इस सवेरे के वक्त The सिखाया Lord है। is saying, son, daughter, don't miss out
the greater things that I have for you. परमेश्वर आपसे कहते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा, जो मैंने बड़ी चीजें रखी हैं, महान चीजें रखी हैं, उसको अपने जीवन में हासिल करो, ले लो। Don't settle for the small things. छोटी छोटी बातों से आप संतुष्ट नहीं होना, Explore Him. आप उनको खोजना, To explore Him, और उनको खोजने के लिए you have to draw closer to Him. आपको यीशु के निकट आना होगा। Remember that. आप याद रखिएगा। With these thoughts in mind, और इन विचारों को अपने मनों में रखते I हुए want to go into the day, हम चाहते हैं कि आप दिन में जाइएगा, into the week. हफ्ते में The जाइएगा। Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He's watching over वो you. आप पर अपनी नजर को लगाए He हुए will हैं, bless you वो immensely. आप